some minutes, some hours, then that day will come in your own life too, when you will realize peace and happiness. Be aware about one truth. Happiness is the only reflection of peace, and peace is the result of stable mind and generous mind. And that stability of and mental stability is the result of pure wisdom. And that pure wisdom is the result of realizing union with Supreme Cause. Nasti buddhi ayuktasya, na cha ayuktasya bhavana, na cha bhavyatah shanti, ashantasya kutah sukham. This was indicated by Lord in Bhagavad Gita. Asantasya kutah sukham. Where there is no peace, there is no happiness. And how peace will come? He told that na cha ayuktasya bhavana, na cha bhavyatah shanti. If your vision is not generous, then peace never will come in your life. Make your mind generous. How mind can be generous? He told, Nasti buddhi ayuktasya, na cha ayuktasya bhavana. If your intellect is not pure, not stable, then your mind can't be generous. Stability of your wisdom, your intellect, is the root cause of your generosity. Then how intellect can be stable and pure? The Lord told here that Nasti buddhi ayuktasya. If you are not yukta, yukta means you are not realizing oneness with Supreme Cause. If you are not realizing unity with Supreme Cause, then your wisdom can't be pure. Where there is diversity, where there is separation, where there is numerosity, there is impurity. Because that is the effect of nescience. In Upanishad we are reading, nescience appear in the form of ignorance, and that ignorance becomes root cause of believing in diversity. So be aware about this truth and try to realize oneness with Supreme Cause and see reality in diversity too. What reality exists in diversity? When you will try to search, you will find out that there is nothing but only projection of unity. If diversity is nothing but projection of unity, it means it has no separate entity. There is only one Supreme Cause is manifesting in numerous name and form. So when you will realize the truth, automatically you will realize unity always in your own life too. So that very unity will be cause of purity of your wisdom or your mind, and that will appear into form of generosity, and that generosity will give you peace, and peace will be root cause of your happiness. Okay? This was great message in Bhagavad Gita, the second chapter. And this diversity is called kshara, means changeable. And unity is called akshara, it means non-changeable. But beyond both, there is one Supreme Cause, Supreme Truth,
that is beyond all adjectives. This diversity or unity, all are adjectives we are using for cause and effect. But that Supreme Being is beyond all cause and effect. There is no adjective. So Lord stated in 15th chapter that Kshara and Akshara both are my own projection, but I am beyond both. Due to this, and great seers and Vedas also describe me as a Purushottama, and he who are aware about this Purushottama form and become omniscient, all-knower, and become perfect in his own life. So, I am describing this 15th chapter of Bhagavad Gita, the 17th shloka. Shri Krishna Vande Jagat Gurum. 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 Om Vasudeva Sutam Devam Kanschanuramardanam Devaki Paramahanandam Krishnam Vande Jagat Gurum. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire. प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। द्वौमिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे विदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः। मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान भगवान अपनी करुणा से आप सभी को सुबोध प्रदान करें, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। 15वें अध्याय कि धीरे धीरे अब परिसमाप्ति पर पहुंच रहे हैं हम लोग। गीता का यह गुह्यतम ज्ञान भगवान ने इस अध्याय में दिया है। विशेष रूप से आचार्यों का कथन है कि जिस तत्व का विवेचन पूरी गीता में भगवान ने विभिन्न नामों से किया है, उस समग्र तत्व को उन्होंने इस 15वें अध्याय में संक्षेप में कथन कर दिया है। सृष्टि में केवल एक परम तत्व है जिसे ब्रह्म कहते हैं मूलतः, और उसी की 3 त्रिविध अभिव्यक्तियां हैं। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मवेद। श्रुति कहती है कि भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता वह ब्रह्म इन त्रिविध रूपों में प्रकट होता है। सर्वम एतम त्रिविधम
प्रोक्तम ब्रह्म एतत् ब्रह्म सर्वम एतम त्रिविधम प्रोक्त। वह एक ब्रह्म इन तीनों रूपों में कहा जाता है, त्रिविध रूपों में कहा जाता है, भोक्ता, भोग्य और प्रेरित। उसी को यहां पर भगवान ने क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम शब्द से अभिहित किया है। भोग को क्षर, भोक्ता को अक्षर और प्रेरिता को पुरुषोत्तम कहा है। इसलिए पहले क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते और उत्तम पुरुषस्तु अन्य, यह प्रेरिता है। प्रेरितारम चमत्वा, उपनिषद कहती है विवेकी लोग इसे प्रेरिता के रूप में जानते हैं। और यहां पर भगवान ने उसे कहा है विभर्ति अव्यय ईश्वर, प्रेरिता माने ईशन करता, वह इंस्पायरिंग फोर्स जिसे कह सकते हैं। और अनुशासता भी है वही, शासनकर्ता भी वही है। सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में प्रकाशित होता हुआ, व्याप्त होता हुआ वही अनेक प्रकार की क्रियाओं में जीव को प्रेरित करता है, अथवा वही अनेक प्रकार की क्रियाओं में इन्हें प्रेरित करता है। और विशेष रूप से ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम आदि जो अष्टधा प्रकृति के कार्य हैं, ये उसी की प्रेरणा से, उसी के इंस्पिरेशन से विविध प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। और कार्यों के दो ही रूप होते हैं। जितने प्रकार के कार्य होते हैं उनके दो ही भेद हैं। एक तो भोग, जिसका अभिप्राय है अनुभूति, और दूसरी क्रिया जिसका अभिप्राय है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति और भोग ये दो प्रकार के कार्य ईश्वर की प्रेरणा से ही संपन्न होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। गीता का ही मंतव्य है उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरता। उसको अन्य इसलिए कहा है कि वह भोक्ता नहीं है और वह कर्ता भी नहीं है। जैसा कि उपनिषद कहती है तयोरन्य पिप्पल स्वादवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकसीति, वह दृष्टा है। परमात्मा जो है वह कर्ता और भोक्ता नहीं है। असंगो अयम पुरुष, यह पुरुष असंग है, न कर्ता है न भोक्ता है। इसके विषय में उपनिषद का कथन है कि वह दृष्टा मात्र है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। वह साक्षी है, वह चेता ज्ञान स्वरूप है, वह केवल है, असंग है, और वह निर्गुण है, गुणों से परे। ये उसकी क्वालिटीज है, ये उसके लक्षण है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। तो परमात्मा के इस स्वरूप की व्याख्या करते हुए उपनिषद ने हमें समझाया कि परमात्मा कर्ता और भोक्ता नहीं है। कर्ता भोक्ता किसमें है? जीव, उपाधि युक्त चेतन, जिसके विषय में गीता में भी बताया गया है। भगवान ने कहा कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृत्युच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्यकरण और कर्तृत्व ये तो प्रकृति के परिणाम है, और पुरुष जो है उसमें सुख दुखों का भोक्ता होता है, क्योंकि अनुभूति प्रकृति का विषय नहीं है,
भोग माने अनुभूति, याद रखो। भोग शब्द का अर्थ होता है एक्सपीरियंस, अनुभूति। और अनुभूति प्रकृति का कार्य नहीं है, क्योंकि प्रकृति में चेतना नहीं है जिससे कि वो अनुभव कर सके। तो अनुभूति जो है वह चेतन का धर्म है, और चेतन को जीवात्मा व अक्षर कहते हैं, इसलिए उसका एक नाम कूटस्थ भी है। तो कूटस्थो अक्षर इत उच्यते, ऐसा भगवान ने कहा। और क्योंकि वह अक्षर जो है वह परमात्मा का ही प्रकाश है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उसी का रिफ्लेक्शन है, इसलिए वह इस शरीर में इसका धारण करता हुआ और इसमें निवास करता हुआ इसके साथ दुख सुख का भोक्ता बना हुआ है, चेतनांश के नाते। इसलिए अगले श्लोक में भगवान समझा रहे हैं, यस्माक्षरमती तो क्षर से तो भगवान सर्वथा अतीत है। अतीत माने परे, उनका उससे कोई संसर्ग नहीं है। यस्मात् क्षर अतीत अहम अक्षरादपि च उत्तम, और अक्षर से वो उत्तम है। उत्तम इसलिए है उत्तम, उत्तम शब्द का अर्थ कल मैंने बताया था उत्तम। उत्तम माने सबसे परे, सबसे ऊपर। अब उत्तम है किससे? अक्षर से। अक्षर से परे हैं, यानी क्षर से तो बिल्कुल परे हैं, अतीत हैं, लेकिन अक्षर से भी ऊपर है, उत्तम है। क्योंकि जैसे आपके इस ब्रह्म चक्र में जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, जो चिदांश प्रकट हो रहा है, इससे तो ऊपर ही है ना, जो इसका कारण स्वरूप है, जो सच्चिदानंद घन है, जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, ऐसे आप समझ लें, वह तो आपके इस चिदांश से ऊपर है, इसका कारण है, इसका प्रकाशक है। वो सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादिवत्पत्ति सोई, तो इससे परे नहीं है, इससे उत्तम है। परे होना और उत्तम होना दोनों में अंतर है। उत्तमता और मध्यमता का यानी माप तोड़ जो है ये सजातीय तत्व में होता है, और विजातीय तत्व में उत्तमता मध्यमता की कल्पना नहीं होती। ये उत्तम है और ये मध्यम है, ये किसमें होगा? सजातीय तत्व में होगा। जब दो सजातीय तत्व होंगे तो उनमें कहा जाएगा कि ये तो उत्तम है और ये इससे मध्यम है, ऐसी कल्पना उसमें होगी। लेकिन जो सजातीय तत्व नहीं है उसमें उत्तम मध्यम की कल्पना नहीं होती, उसमें तो होता है कि ये तो इससे भिन्न है, बिल्कुल अलग है। तो इसी रूप से भगवान कहते हैं यस्माक्षरमती तो, क्षर से तो मैं अतीत हूं। अतीत माने परे, असंग, सर्वथा दूर। जैसा कि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, उससे अपरामृष्ट है। अपरामृष्ट माने बिल्कुल परे, कभी उसका परामृष्ट हुआ ही नहीं, उससे संसर्ग हुआ ही नहीं कभी। कहा जब कभी प्रकृति से प्रभु का संसर्ग हुआ ही नहीं, तो प्रकृति का प्रेरक प्रभु कैसे बन गए? यहां पर एक प्रश्न होता है। भगवान ने स्वयं गीता के 9वें अध्याय में कहा है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो और 7वें अध्याय में कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। और इसी बात को भगवान ने अन्यत्र भी इसी प्रकार से कहा है, ये प्रकृति मेरी है। 7वें अध्याय में क्या? सात्विक भाव, राजस भाव, एचैव सात्विका भावा राजसा तामसा से मत तेवेति तान विद्धि न तू अहम तेष्टे मयि। तो ये जो भगवान के कथन है कि प्रकृति का विस्तार मेरे प्रकाश में होता है, मेरे साक्षित्व में होता है, मया दक्षिण प्रकृति सूत्र। तो ये कैसे माना जाए कि प्रभु का इससे संसर्ग नहीं हुआ? बिना संसर्ग से ये प्रकृति कैसे जगत का विस्तार कर देती है? तो इसका उदाहरण दिया जाता है कि जैसे सूर्य जब उदय होता है, सूर्य के उदय होने पर कमल अपने आप विकसित हो जाता है,
अब सूर्य से पूछिए कि क्या आप कमल के विकसित करने वाले हैं, तो क्या वो कहेगा? सूर्य के उदय होने पर कमल विकसित हो जाता है, कुमुदनी बंद हो जाती है। न तो कुमुदनी को बंद करने में सूर्य का कर्तृत्व है और न तो कमल के विकसित करने में सूर्य का कर्तृत्व है। सूर्य के उदय होते ही समस्त पशु पक्षी उठ करके खड़े हो जाते हैं, जग जाते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि सूर्य उदय के बाद भी सोता रहे, वो बात अलग रही, लेकिन जितने पशु पक्षी हैं सृष्टि के, आप देखिए सूर्य उदय के साथ ही सब जग जाते हैं, कोई सोता नहीं, केवल मनुष्य के सिवा। क्योंकि मनुष्य अपने आप में स्वतंत्र है, भगवान ने इसको फ्री रखा है, अपने अधिकार से परे रखा है। भाई तुम जैसा करो वैसा भरो, लेकिन बाकी जितने हैं उनका दायित्व तो परमात्मा पर है, इसलिए परमात्मा के साथ वो सोते हैं, परमात्मा के साथ ही जगते हैं। सूर्य अस्त होता है तो सारे प्राणी अपने घोंसलों में चले जाते हैं और सूर्य उदय के साथ ही सब उठ करके बैठ जाते हैं, उससे पहले उठ जाते हैं। यानी जहां पर अरुणोदय हुआ वहां पर पक्षी चहचहाना शुरू कर देते हैं। ये ईश्वरी विधान है। तो जैसे सूर्य के उदय से पक्षी चहचहाने लगते हैं, कमल खिल जाते हैं और दुनिया में गति आ जाती है, तो सूर्य इसका हेतु तो बन जाता है, लेकिन वो इसका कर्ता नहीं है, उसमें इसका कर्तृत्व नहीं है। ये सहज होता है, इसको कहते हैं सहज, इसको स्वभाव तो प्रवर्तते, ऐसा भगवान ने कहा है गीता। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये सब स्वभाव का होता है, भगवान का इसमें कर्तृत्व नहीं है। उनके दृष्टि मात्र से सारे जगत की रचना, पालन, प्रलय और संवरण ये प्रकृति किया करती है, इसमें प्रभु का कोई कर्तृत्व नहीं है। उसके लिए तो वेद कहता असंगो अयम पुरुष, यह पुरुष तो सर्वथा असंग है, साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य। इसलिए यस्माक्षरमती तो प्रकृति से तो परे है प्रभु, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह गिरज अविनाशी मन समेत जही जान नबानी तर्क में सकई सकल अनुमानी। तो गोस्वामी जी ने अपने रामायण में इन्हीं मंत्रों का अनुवाद किया है चौपाई। तो भगवान प्रकृति से परे, यस्माक्षरमती तो हम, यह क्षर क्या है? प्रकृति, क्षर प्रधानम अमृताक्षर, कल मैंने बताया था आप लोगों को। इससे भगवान सर्वथा परे है, लेकिन अक्षरादपि च उत्तम, लेकिन इस शरीर में, इस प्रकृति में जीव रूप में रहने वाली जो चेतना है, जीव भूता महाभाव एदम धारयते जगत, जगत को धारण करने वाली जीव भूता जो परा प्रकृति है या अक्षर पुरुष है, उस अक्षर से भी भगवान उत्तम है, उत्तम है। इसके लिए एक और अर्थ किया जाता है, एक कार्य जगत में चेतन की अभिव्यक्ति अविद्या, ये कार्य जगत जो है, क्षर जगत जो है, इसको क्षर पुरुष कहा गया है। और कारण जगत में ईश्वर की अभिव्यक्ति, चेतन की अभिव्यक्ति, जिसकी संज्ञा ईश्वर है, जिसको वेद में हिरण्यगर्भ कहा गया, हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। वो जो हिरण्यगर्भ है उसमें जो चेतन का आविर्भाव होता है वो अक्षर पुरुष कहा जाता है, वो अक्षर पुरुष है। और ये जो जीव में चेतन का आविर्भाव है ये क्षर पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इसका उदय और अस्त होता है, ये उस अक्षर से प्रकट होकर अक्षर में विलीन होता है। इसका लय है ना, जिसका लय होता है, जिसका विलय होता है, जिसका आविर्भाव होता है वो क्षर है, और जिसका लय और विलय नहीं होता, आविर्भाव और तिरोभाव नहीं होता, वो अक्षर है। तो कारणावस्था में विद्या माया में जो ब्रह्म का प्रकाश पड़ रहा है वो अनित्य तत्व होने के नाते वह अक्षर पुरुष कहा गया। और जो अविद्या में चेतन का प्रकाश पड़ रहा है, ब्रह्म का प्रकाश पड़ रहा है, वह आविर्भाव तिरोभाव की गति को प्राप्त होने के नाते क्षर कहा गया। तो ये क्षर पुरुष है, वह अक्षर पुरुष है। और इन दोनों उपाधियों से, विद्या और अविद्या, दोनों प्रकार की उपाधियों से जो परे शुद्ध चेतन है, शुद्ध चेतन, उस सच्चिदानंद घन को पुरुषोत्तम कहते हैं। और वह यस्मात् क्षरमती तो हम, इस क्षर जगत से, क्षर जीव से तो अतीत है ही वो, अक्षरादपि च उत्तम,
ईश्वर की अवस्था में जो चेतन है उससे भी ब्रह्म उत्तम है, क्योंकि वो परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भगवान। और इसको सत और असत कहते हैं। और उस पर ब्रह्म को केम ये तत्प्रोक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमसुते अनादिमत पर ब्रह्म न सत न असत इति उच्यते। वह सत असत दोनों से परे, जिसको यहाँ क्षर और अक्षर कहा गया है उसी को असत और सत कहा गया है। क्षर जो है असत है, अक्षर जो है वो सत है, और ब्रह्म जो है पर ब्रह्म जो है वो सत और असत दोनों से परे अक्षर है, ये पुरुषोत्तम है, इसलिए उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। तो यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादप्योत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। तो क्षर से तो मैं अतीत हूं, अक्षर से मैं उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में, यानी श्रुति और स्मृति, लोक स्मृति और वेद श्रुति, श्रुति और स्मृति, आगम और निगम, यानी वेद निगम और लोक आगम, ये आगम और निगम, श्रुति और स्मृति, इन दोनों में मुझे पुरुषोत्तम कह करके पुकारा जाता है। प्रथितः पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम रूप से मैं प्रसिद्ध हूं। प्रथितः माने प्रसिद्ध, मैं पुरुषोत्तम रूप में प्रसिद्ध हूं इन दोनों में, श्रुति और स्मृति। यहां पर दो बातें हमेशा याद रखने की हैं। एक तो परमात्मा की वह स्थिति जिसमें कार्य कारण का कोई भेद नहीं है, उदय अस्त का कोई प्रश्न नहीं है, जिसमें यानी आविर्भाव का कोई प्रश्न नहीं है, वह स्थिति, उसको पर ब्रह्म कहते हैं। गीता ने उसे पर ब्रह्म माना है, पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भगवान। तो एक तो पर ब्रह्म, और दूसरा उसके प्रकाश में उसकी पराशक्ति जो गर्भित होती है, पराशक्ति गर्भित होती है, तो उसके गर्भित होने पर जो उसमें से विराट पुरुष का आविर्भाव होता है, जिसकी ईश्वर संज्ञा है, तो वह ईश्वर शब्द से कहा जाता है। और उस विराट पुरुष से ही ये अनंत ब्रह्मांड का आविर्भाव होता है, अनंत रूपों में ये जो जगत बनता है ये उसी से बनता है। और इसमें जो चेतना है उसकी जीव संज्ञा होती है। तो जीव, ईश्वर और ब्रह्म, इसमें तीन संज्ञाएं इसकी हो जाती है। एक ही चेतन तीन नामों से पुकारा जाता है, जीव, ईश्वर और ब्रह्म। तो यहां पर जीव को क्षर पुरुष, ईश्वर को अक्षर पुरुष और ब्रह्म को उत्तम पुरुष कह करके संबोधित किया है। यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। अब यहां पर एक और प्रश्न होता है कि यदि हम ऐसा मान लें तो जीवत्व में जो चेतन है, ईश्वरत्व में जो चेतन है और ब्रह्म का जो चेतन स्वरूप है, इनमें क्या अंतर है? क्या इनमें कोई अंतर नहीं है? चेतन तो चेतन है, चेतन चेतन है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो जीवत्व भाव को प्राप्त हुआ है वो भी वही शुद्ध चेतन है, जो ईश्वरत्व की स्थिति में वो भी वही शुद्ध चेतन है, और जो ब्रह्म है वो भी वही शुद्ध चेतन है। यहां पर जैसे मटके में रहने वाला स्पेस जो है, आकाश जो है, और मकान में रहने वाला जो आकाश है, और जो मकान से परे महाकाश है, इन तीनों आकाशों में कोई भेद नहीं है। भेद तो उपाधि का है। मकान के नाते वो मठाकाश कर दिया गया और मटके के नाते उसे घटाकाश कर दिया गया। तो घटाकाश और मठाकाश ये दोनों आकाश शब्द का जो प्रयोग है ये तो केवल आकृति के नाते है। तत्वतः तो महाकाश महाकाश है, वहां कोई अंतर नहीं है। का इसी रूप से जो इस रहस्य को जान जाता है कि जीवत्व के रूप में जो चेतन है घटाकाश के समान, और ईश्वरत्व के रूप में जो चेतन है मठाकाश के समान, और इससे परे जो चेतन है महाकाश के समान, वो तीनों एक है। वहां कोई भेद नहीं है, तत्वतः कुछ भेद नहीं है। एक पद में मैंने संकेत किया है तत्वतः कुछ भेद ना
विभो भेद त्रिकाल रे, त्रिकाल है, पर ब्रह्म है ना बावरे तो ब्रह्म ही कालाल है। जब ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो ब्रह्म का